वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। Hello and welcome to our channel. Today we'll be discussing Indian economy. More specifically, we'll be discussing open economic concepts. This topic becomes important for UPSC, PSC or any such examinations which involves economy and Indian economy as their syllabus. These are some subtopics that we'll be discussing. We'll be discussing all of them in couple of sessions. Let's begin. Let us know what's exchange rate, or in other terms we can call it foreign currency exchange rate. You might have heard that $1 is equal to 72 rupees, the price is increasing. ये सब आजकल हम सुनते रहते हैं ना, लाइक वी हियर दैट आज डॉलर का प्राइस 80 रुपये हो गया, आज डॉलर का प्राइस 70 रुपये हो गया, आज 75 हो गया. तो ये कैसे डिसाइड होता है, वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. तो व्हाट हैपेंस, एक्सचेंज रेट इज़ नथिंग बट द थिंग दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. जो हमने अभी अभी बोला वही चीज़ एक्सचेंज रेट होती है कि $1 कितने रुपए का मिलेगा हमें. दैट इज़ नथिंग बट इफ़ वी टेक $1 और a rupee, how much rupee we have to pay to get that $1. In case of India, dollar is much greater than rupee because $1 is equivalent to somewhat between 70 to 80 rupees. And how do we determine the exchange rate? हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कितने रुपए का है वो. We find it through fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system is nothing but इसमें सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि हम इतने रुपए का ये डॉलर खरीदेंगे. This was the practice back in 1991 in case of India, and most of the countries used to have this very same exchange rate system till 1970s, but India continued it till 1991, like till the time we got the LPG reforms. Then we switched over to market exchange rate system, or we can call it flexible or floating or market exchange rate. Flexible because it varies. Flexible is a thing that changes its shapes, changes size in anything that is not stable. So what happens, every economy has two arms, either demand or supply. When the demand increases, like if we consider India, if the demand of dollar increases, the price of dollar increases. That's so obvious. And if the demand decreases, the price of dollar also decreases. When does price of dollar decreases? When does price of dollar decreases? Just think about it. Price of dollar decreases when there's low demand or the supply is more. That's easy. And when is supply more? When India is exporting lot of merchandise or lot of services. When you supply more, you get dollars. When you get dollars, supply decreases. When supply decreases, the rate decreases. Therefore, in order to decrease the exchange rate, increase the imports. But in case of India, imports are less than exports. That is the reason why dollar is greater than rupee. Then is managed floating rate exchange system. In this, what happens? Mainly, the exchange rate system is flexible, but during the terms of crisis, the central bank decides what will be the rate. Then the major thing is purchasing power parity based exchange rate. We'll discuss it in more precisely. So what happens in purchasing power parity? Before starting that, you need to know there's a term called common consumption basket. Common consumption basket is nothing but group of commodities that are commonly used in both the countries. So what happens, like for example, this is a basket. It has some goods and this basket is in US.
the very same basket we have in India with same goods. In US this basket cost $1,000 and in India it cost $40,000. ये जो बास्केट आपको दिख रहा है यही बास्केट आपको इंडिया में 40,000 का मिलेगा जो यूएस में आपको $1,000 में मिलता है. अब कॉमन कंजम्पशन बास्केट यूएसए में $1,000 का है, कॉमन कंजम्पशन बास्केट इंडिया में 40,000 का है. तो आप इससे परचेजिंग पावर पैरिटी निकाल सकते हैं कि यही बास्केट आपको कितना रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा, कितने रुपए महंगा पड़ रहा है. तो आपको इसके हिसाब से आपका हर रुपया 40 रुपये $1 बन गया. तो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना इसके. यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हेयर. In market exchange rate system there's nothing like common consumption basket. It's in market exchange rate usually it's demand and supply of exports and merchandise or anything services. Only the supply and demand will matter over there, but over here the commodities will matter. I hope you're getting what I mean. I hope समझ आ रहा है आपको. So let's see what's the difference between market exchange rate and purchasing power parity in India. Just now we discussed that market exchange rate in India is much greater than the purchasing power parity in India. Why is that? Because imports are higher in India than the exports, which make the demand of dollar higher than the supply, which makes the value of dollar greater than value of rupee. The MER, that is mixed market exchange rate, is high in import dependent countries like India, and purchasing power parity is low where the basket cost is cheaper. Like for example, in the previous slide we saw that the basket cost is 40,000. What if the price was much less? What if it cost 20,000? Then according to that, if we calculate that US dollar 1,000 and 20,000 in India, which means each dollar will be 20 rupees. Therefore PPP decreases. So therefore if MER is higher in India and PPP is much lower than that, therefore GDP of MER is less than GDP in PPP terms. We can get that to an example as well, the perfect thing. GDP in GDP based MER, if we calculated market exchange rate based MER, India becomes 5th largest economy in terms of GDP. And India becomes 3rd largest economy in terms of GDP if we consider it on the basis of purchasing power parity. आप ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, डिमांड कम हो जाएगा डॉलर का, क्योंकि आपके पास पैसे आएगा. आप फॉरेन में बेच रहे हो कुछ तो आपको रिटर्न में डॉलर मिलता है, तो आप डॉलर कम यूज़ करोगे, कम डिमांड होएगा डॉलर का आपके पास. जब डॉलर का कम डिमांड लोगे तो प्राइस विल डिक्रीज. जिस चीज़ का डिमांड नहीं है उसका प्राइस कम होगा, जिस चीज़ का डिमांड बढ़ गया उसका प्राइस बढ़ जाता है. सिंपल इकोनॉमिक्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. आपको समझ आ रहा होगा ये सब चीज़ें. इंटरलिंक करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स. नाउ दिस टॉपिक इज़ very important for every other child who is studying for economics or preparing for UPSC or PSC or anywhere you can see this topic. This topic is that important. What does balance of payment account includes? It includes current accounts and capital accounts. Balance of payment accounts is nothing but it is an account maintained by all countries. Each and every country will maintain a balance of payment account with respect to all international transactions. Now let's study its components. What does current account? Current accounts include net visibles. Now visible is something that you can see. You can see goods, you can see merchandise,
So all the net exports, all the net merchandise or the goods that you sell or you get, the imports and exports that happens between countries is all part of net visibles. Now there's the one is visible, the other would be net invisibles. The net invisibles include net services export. So net services export are services in IT sector or services in IT related IT related sectors like computing or anything. Then we come on to net factor income from abroad. Now this net factor income from abroad is nothing but money that we get from abroad. The money can be in terms of net compensation of employees. Now Indians working abroad might be earning, might be like they will be earning something. So that forms a part of current account in the terms of net invisibles. And the other is net investment income. Net investment, India invest in foreign countries, they get some profit. इंडिया ने अफ़गानिस्तान में रोड बनवाई, इंडिया ने कहीं और कंट्री में रोड बनवाया, टावर बनवाया या कुछ भी किया ऐसा जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उनको रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा. वो रेंट भी मिल सकता है, उन्होंने कुछ लिया तो रेंट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा. तुमने किसी को असिस्ट किया तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है उस चीज़ का. वो सारा पार्ट आपको करंट अकाउंट में काउंट किया जाता है, उसको जो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम के थ्रू देखा जाता है. देन इज नेट ट्रांसफर्स. नेट ट्रांसफर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके के हो सकते हैं ये. लाइक नेट ऑफिशियल ट्रांसफर जो गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट को कहीं से पैसा मिल रहा है. देन कम्स नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स. ट्रांसफर्स एसोसिएटेड विदाउट गवर्नमेंट, दैट्स वाई इट्स प्राइवेट. एनआरआई ट्रांसफर करते हैं पैसे, वो नेट ट्रांसफर बन जाता है. एनजीओ ट्रांसफर करता है पैसे, फॉरेन एनजीओ ट्रांसफर कर दिया पैसे, वो बन जाता है. फॉरेन कंट्री ने ट्रांसफर कर दिया पैसे, फॉरेन कंट्री ने ट्रांसफर किया थ्रू गवर्नमेंट, वो नेट ऑफिशियल ट्रांसफर. फॉरेन इन्वेस्टर ने आपको ट्रांसफर किया, एनजीओ को ट्रांसफर किया, दैट इज नेट प्राइवेट ट्रांसफर. अब ये सब आपने जाना तो आपने एक टर्म सुना होगा, रेमिटेंस. रेमिटेंस इज नथिंग बट नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो आपने अभी देखा था. नेट इनविजिबल में आपने पढ़ा था नेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके अंदर आपने नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखा था. तो नेट रेमिटेंसेस इज नथिंग बट नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज along with net private transfer. So net remittances is total amount of foreign currency that is received by Indian household from abroad. This is not by government, to amount that is received to Indian households. Now in terms of net remittances, India is a leading economy. India is one of the global leaders in terms of net remittances along with net services export. India is very good in net services export. India earns a lot from net services that India provides. Now there is a term called current account deficit. Now why it is deficit? When the amount spent is is more than the amount that you incur. जितना तुमने खर्च किया वो ज़्यादा था जितना तुम्हें खुद मिला. तुम्हें अगर 10 रुपये मिला और तुमने 15 रुपये खर्च कर दिया तो तुम्हारे 5 रुपये का तुम्हें नुकसान है, तुम्हें डेफिसिट है 5 रुपये का. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन नेट एक्सपोर्ट्स में क्या क्या आएगा, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स. अगर तुम्हारे एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट से, आपने ज़्यादा मंगवा लिया लेकिन आपके पास गया कम, तो आपके पास डेफिसिट हो जाएगा. और नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट इनविजिबल्स, जितने भी हमने इनविजिबल्स पढ़े थे, अगर इनका सम 0 से कम आता है
तो वी कैन से दैट द कंट्री इज फेसिंग BOP, करंट अकाउंट डेफिसिट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नेट एक्सपोर्ट्स और नेट इनविजिबल्स का सम 0 से कम आया तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करोगे. हायर करंट अकाउंट डेफिसिट means the country is dependent on international economy. Why current account deficit can be higher? अगर आपके एक्सपोर्ट्स कम हैं और इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो दैट्स ऑब्वियस कि आप दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो. तो अगर CAD बहुत ज़्यादा है तो आप डिपेंडेंट बन जाते हो. तो हायर CAD मीन्स इंक्रीज इन डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी. Now when do we call that it is higher? There should be specific value. कुछ तो पता होना चाहिए कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई हो जाते हैं. लाइक हमें पता होता है कि यार 90% मार्क्स हाई होते हैं, 40% से हाई होता है. तो we can calculate that. तो when do we say that it is higher CAD? तो we say that it is higher CAD when CAD is more than 1% of the GDP. अगर CAD जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो आपके पास डेफिसिट आ रहा है वो 1% से ज़्यादा है GDP से, तो वी कॉल इट हायर CAD. दैट मीन्स द कंट्री इज मच मोर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज करंट अकाउंट. नाउ लेट्स गो टू कैपिटल अकाउंट. दिस वाज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ BOP. Capital account includes net external assistance, short-term external debt, net external commercial borrowings, net banking capital, and net foreign investment. Net foreign investment includes FDI and FPI. We'll be discussing it in few minutes. So what is net external assistance? Net external assistance is nothing but the official loans. Of all the official loans that we get or that the government receives is part of net external assistance. जितना भी आपने बाहर से लोन लिया है, ऑफिशियल लोन जो गवर्नमेंट लेता है, वो आपका नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस का पार्ट बन जाता है. शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट जब होता है जैसे आपने 10 साल का लोन लिया जो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस का पार्ट है. 10 साल का लोन 10 करोड़ रुपए था. आपने 10 साल के लिए 10 करोड़ रुपए लिया. आपने हर साल 1-1 करोड़ रुपए चुकाया विद इंटरेस्ट ऑब्वियसली. तो आपने हर साल 1 करोड़ रुपए दिया तो आपको 9 साल में 9 करोड़ रुपए हो गया जो पार्ट नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस का था. लेकिन जो आपका फाइनल 10th ईयर आया, 10th ईयर में आपको 1 करोड़ चुकाना पड़ा. जो बचा हुआ 1 करोड़ था वो चुकाना पड़ा. तो जो बचा हुआ 1 करोड़ था वो पार्ट बन जाता है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट का. तो पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट दैट इज नॉट पेड और दैट हैज टू बी पेड completely in the current year becomes the part of short-term external debt. What is net external commercial borrowings? Commercial borrowings taken by Indian company. इंडिया की कंपनी अगर बाहर के किसी फॉरेन बैंक से लोन लेती है तो वो पार्ट बन जाता है नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का. अब ये बाहर की कंट्री से लोन क्यों ले रही है, बाहर की कंट्री के बैंक से लोन क्यों लिया उस बैंक इंडिया की कंपनी ने? सीधी बात है, बहुत ऑब्वियस है. अगर वहाँ पर तुम्हें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इंडिया में ज़्यादा मिल रहा है, तो तुम बाहर से पैसा लोगे. इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट तुम्हें 7% पे 10,000 रुपये मिल रहे हैं और फॉरेन कंट्री में आपको 10,000 रुपये 2% पे मिल रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है आप 2% देना पसंद करोगे. तो वही पैसा जो आपको फॉरेन बैंक से मिलता है विद लेस इंटरेस्ट रेट, इंडियन कंपनी जो बोरो कर रही है लेस इंटरेस्ट रेट पे, वो पार्ट बन जाता है नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का. नेट बैंकिंग कैपिटल इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म के लिए NRI जो डिपॉजिट करते हैं इंडियन बैंक्स में. इंडियन बैंक्स में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा होता है.
आपका डिपॉजिट रेट में भी इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है। तो जो एनआरआईज है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज अपना पैसा इंडियन के बैंक में जमा करते हैं। इंडिया के बैंक में जमा करे हुए पैसे एनआरआईज के लॉन्ग टर्म के लिए नेट बैंकिंग कैपिटल का पार्ट बन जाता है। नेट बैंकिंग कैपिटल इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट्स केप्ट बाय एनआरआई इन इंडिया। Net foreign investment includes FDI and FPI. FDI is nothing but foreign direct investment. Foreign direct investment and FPI, that is foreign portfolio investment, both are part of net foreign investments. So what happens in FDI? Investment होता है एक specific sector में. तो investment takes place in specific sectors in India. किसी कंपनी ने इन्वेस्ट करा इंडिया में, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा 100% FDI, 40% FDI, 51% FDI, गवर्नमेंट ये सब करता रहता है। लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर FDI के साथ सेक्टर मेंशन करा होता है कि इस सेक्टर में, लेकिन स्पेस सेक्टर और इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन IT सेक्टर, इस तरीके से सेक्टर मेंशन होता है FDI में। तो ज़्यादा FDI मतलब ज़्यादा ग्रोथ, GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो इट इज़ लिंक्ड विद जॉब क्रिएशन एज वेल। व्हाट हैपन्स इन FDI जो लाता है वो अपने साथ बेटर टेक्नोलॉजी लाता है। तो बेटर टेक्नोलॉजी भी आती है साथ साथ। FDI में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है, पैसे भी आते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है, जॉब क्रिएशन भी होता है, GDP ग्रोथ भी होता है। तो देयरफॉर एवरी अदर कंट्री इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग देयर FDI। FDI बड़ा होगा, FDI बढ़ेगा तो तुम्हें ज़्यादा पैसा आएगा कंट्री में, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें ज़्यादा सब कुछ होगा, तुम्हारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा आपको, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और ऐसे ही कुछ सर्विस सेक्टर में अगर पैसा आ रहा है FDI के थ्रू, तो दैट इज़ हैपनिंग थ्रू शेयर मार्केट्स। शेयर में ओनरशिप राइट्स का इधर उधर होता रहता है। आपको ओनरशिप, शेयर खरीदोगे तो मतलब आप पार्शली ओनरशिप खरीद रहे हो। तो व्हाट हैपन्स इन FPI में क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो को एक पोर्टफोलियो के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट या तो कोई कंपनी कर देगा, फॉरेन कंपनी कर देगी, या फिर एक इंडिविजुअल भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकता है। तो देयर इज नथिंग बट फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन इंडिया। फाइनेंशियल एसेट्स एज इन bonds and shares or anything else like bond, share, mutual funds or anything that includes in financial assets. फाइनेंशियल एसेट्स में अगर FPI क्या होते हैं, FDI आपने देखा था कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है इसके अंदर। FPI में भी पैसा इन्वेस्ट होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। अगर FPI शॉर्ट टर्म के लिए, आपको जो इन्वेस्टर है वो कभी भी जा सकता है, अपना शेयर लेकर वो चला जाएगा। ऐसे मनी को आप हॉट मनी भी बोल सकते हैं, जो वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। कि अच्छा, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा कि FPI इतना ज़्यादा चला गया था कि पूरा इकनॉमी हिल गया था इंडिया का, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ कर लिया था। तो जब विड्रॉ करेंगे, बहुत सारा पैसा अचानक से चला जाएगा तो इकनॉमी हिल जाता है। सिमिलरली अगर आपके घर में भी अगर किसी ने मतलब एक अचानक से बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया तो पूरा बजट हिल जाता है घर का। तो सेम चीज़ बड़े सेक्टर में इंडिया के साथ हुआ था, जब बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया था, पैसे वापस ले लिए थे, तो इंडिया का सिचुएशन ढीला हो गया था इकोनॉमिक में। तो ऐसे वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स को हम हॉट मनी भी बोलते हैं। तो FPI की भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है तो इट बिकम्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और अगर किसी इंडिविजुअल ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम है। तो इसलिए हम
इन जनरल टर्म्स में बोल देते हैं कि FPI इज नथिंग बट FII, क्योंकि QFI की वैल्यू बहुत कम है इंडिया में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिजर्व्स अकाउंट, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स भी बोलते हैं. फॉरेक्स क्यों? देयर समथिंग इन फॉरेक्स. You can see that foreign plus exchange becomes forex. Foreign exchange reserves is nothing but forex. You can see that foreign plus exchange becomes forex. तो इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स इसके सब पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं. इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट्स में आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट मानते हैं. तो फॉरेन करेंसी एसेट्स नथिंग बट डॉलर्स, युआन, पाउंड, स्टर्लिंग एंड यूरो, ऐसे काफ़ी सारी करेंसीज को जब RBI रखता है अपने पास, इट इज़ यूजुअली केप्ट विद RBI. तो ये जब रखते हैं, गवर्नमेंट रखता है अपने पास, तो उस चीज़ को हम फॉरेन करेंसी एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे एसेट्स होते हैं, वो हमारे हैं, लेकिन दूसरी कंट्री के करेंसीज हमारे पास हैं. और सिमिलरली गोल्ड, अब इंडिया के पास गोल्ड भी है, तो गोल्ड इज अ रिलायबल रिजर्व इफ एट ऑल द फॉरेन करेंसी एसेट्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग. इनके रेट कम हुए, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, अभी तो बोलते हैं ना कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो तुम्हें फ़ायदा होगा. ये ऐसा सब मानते हैं और ये होता भी है. तो गवर्नमेंट के पास गोल्ड भी बहुत है, तो गोल्ड भी इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट्स का एक पार्ट है. फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड को भी कंसिडर करते हैं. तो फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड दोनों फॉरेक्स रिजर्व्स का पार्ट है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आपका करेंसी ऑफ IMF होता है. IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर करेंसी है जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के नाम से. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो एवरेज ऑफ 5 इम्पॉर्टेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. जो 5 बहुत इम्पॉर्टेंट करेंसीज है वर्ल्ड की, उन सब का एवरेज की वैल्यू SDR की वैल्यू होती है. अब इसको डिसाइड कैसे किया जाता है, कौन कौन सी 5 इम्पॉर्टेंट करेंसीज हैं, दैट इज़ US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ युआन, जापानीज़ येन एंड पाउंड स्टर्लिंग. ये पांचों करेंसीज का एवरेज वैल्यू आपका SDR का वैल्यू होता है. रिवर्स ट्रांसपोजिशन ऑन IMF, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि 2020 में UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व ट्रांसपोजिशन विद IMF recently seen in news is linked with or is associated with, इस टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर IMF था. तो रिवर्स ट्रांसपोजिशन विद IMF is nothing but it's a part of IMF कोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये एक टाइप का डिपॉजिट है जो हर कंट्री अपनी तरफ से IMF के अंदर डिपॉजिट करती है, जो उसे कभी भी ले सकती है जब उसको ज़रूरत हो. तो रिवर्स ट्रांसपोजिशन विद IMF इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ IMF कोटा दैट इज़ डिपॉजिट्स अ मेंबर कंट्री कीप्स विद IMF that can be withdrawn by IFF member or IMF member country at any point of time is reverse transposition with IMF. I hope that was very understandable, और कोशिश किया था थोड़ा सा कि आपको समझ आए. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था. अभी हम आगे पढ़ेंगे BOP क्राइसिस और डेप्रिसिएशन, appreciation, currency depreciation, currency revaluation, devaluation और थोड़ी बहुत और टॉपिक्स जो ओपन इकोनॉमिक के पार्ट हैं. तो थैंक यू वेरी मच एंड we'll be continuing with the same topic in the coming session. Thanks a lot, and please do subscribe to our channel
and press the bell icon if you like it. Thank you.